कि जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान नहीं। एक परिंदा हूँ, उड़ना जानता हूँ, जिंदगी की कश्मकश में गिरफ्तार हूँ, कई तारों में उलझा हूँ, टूटा हूँ, बिखरा हूँ, पर हाँ हारा नहीं हूँ। इस जदोजहद में बहुत कुछ सीखा हूँ, खुददार हूँ पर खुदगर्ज नहीं, गैरतमंद हूँ बेगैरत नहीं। जिन तारों ने किया है कैद मुझको, अब उनसे आशियाना बनाना जानता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान नहीं। सुनो सुनो सब सुनो, किस्सा मजेदार है। एक मैं एक तुम एक कलाकार है। तमन्ना जानी दीदार रुख शमोयुन पर जले बंबरो। In this world, everyone in its own way is a kalakar. Either you take anyone, any person, is a kalakar. Everyone is doing its job. But when it comes to art, we have given this specialization to the artist only, like who do things with the art. Like if you compare science and art, first the art comes, then comes the science. The science comes out from the art, because art, there are no limitations. So artist is a person who could make anything. He has no set of rules. Okay, even if we say Saregama, there are seven sources, but in between the Saregamas there are more Saregamas. So it's just like that. We have a whole huge universe in front of us. So that's our vision. That's the vision of the artist. He has a very broad kind of vision. So ये होता है कि there is so much to say about this, but it's better not to go very philosophical. But yeah, treatment for us, like how society treats us. They treat us like they are just like any other employee or any other जो भी business professional है उनके जैसे है, लेकिन फ़र्क बहुत है उसमें. तो इसलिए मैंने वो गाना जो निकाला है कलाकार, so maybe इससे लोगों को एक हिंट मिले कि how to treat an artist. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, we need our space, we need our time, हमें वो अपनी एक वो स्पेस चाहिए रहती है. तो people don't understand that. They feel like शायद इसमें ईगो है या शायद इसमें ऐसी कुछ बात है, but it's just like we need that space because our profession is about creativity, and it's like creating something from nothing. So where it comes from, into your brain, into your mind, so you have to get it from nothing. तो इसलिए आपको अपनी वो you need that focus, you need that concentration. तो उसके लिए आपको एक वो space चाहिए. The Kalakar song which I have, जो मैंने बनाया है, it started when people like my family, they started telling me कि आप क्या करना चाहते हो, कब तक करोगे, क्या करोगे, कब तक चलोगे. So yeah, then I started exploring myself. Then I realized that everyone is an artist in this world. So the lines of it go, सुनो सुनो सब सुनो किस्सा मज़ेदार है, एक मैं एक तुम और एक कलाकार है. So यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है एक कलाकार को. एक मैं एक तुम एक कलाकार है, गौर से तुम सुनो क्या ये समाचार है, तू है कौन मैं हूँ कौन, कौन कलाकार है यहाँ, तलाशे उसी को सभी, और यहाँ तलाशे उसी को सभी, मिले ना किसी को वही, क्या कहीं मैं वही तो नहीं, वो नहीं तो फिर मैं कौन. So it's like you have the whole universe inside of you, just explore it. That's what we kalakars do. निकल पड़े एक दिन घर छोड़ छाड़ के, सोच के ये चले कि हम भी कलाकार है. अगर तुम्हें याद हो स्कूल में पढ़ा भी हो, हाथ में हाथ लो साथ मिल के पढ़ो, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, घड़ी है राह दोस्तों थकन का नाम भी न लो, उठा दिया कदम अगर तो खत्म है बस अब सफर, चले चलो बड़े चलो यहाँ, देख ले मैं हूँ तेरा फकीर,
है पता जन्नते बेनज़ीर, मैं गरीब एक तू ही अमीर, जान ले कि मैं हूँ कौन, मैं कलाकार हूँ, यारों का यार हूँ, दोस्तों सब सुनो एक फनकार हूँ, दर बदर बेफिक्र एक लाचार हूँ, सब तमाशा तेरा मैं अदाकार हूँ। और I'm born in Srinagar. तो बचपन it was very like just any other kind of middle class guy. Like I have seen a very tough childhood in case of if you say financially and all this, yeah, it was very tough. It was very tough. मैं पढ़ाई में अच्छा था लेकिन वो सब चलो साइड में रखते हैं. Because being an artist, I will tell you how this came into me. Okay. So the family, मतलब which I'm very thankful, तो मैं उस ख़ानदान में पैदा हूँ, मैं उस घर में पैदा हो गया. घर का जो कल्चर था हमारे, वो वहाँ पे मतलब सूफ़ी म्यूज़िक, सूफ़ी पोइट्री, जो भी ऐसे सूफ़ी स्टोरीज़ वगैरह, इनको काफ़ी वहाँ पे इज़्ज़त दी जाती है. इवन माई ग्रैंडफादर राइट नाउ ऑल्सो, मैं उनके पास बैठता हूँ तो यही कहानियाँ चलती रहती है कि उन बुज़ुर्ग का क्या था, उन बुज़ुर्ग ने क्या बनाया है, इन्होंने क्या लिखा है, इस पोइट्री का मतलब क्या है. तो यही उनकी तशरीह करते रहते हैं वो. तो मैं उस माहौल में पला बड़ा था. तो बचपन से एक ये था कि जो सूफ़ी मजलिसें लगती थी यहाँ पे, जो रात भर चलती थी, जहाँ पे सारे बुज़ुर्ग लोग बैठा करते थे, मतलब 50, 60, 70 ऐसे. और मैं एक छोटा सा बच्चा जो 5th 6th में पढ़ता था, मैं भी होता था उन मजलिस में. तो फिर वो मुझे देखते थे, ये इतना छोटा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है. बट उनकी भी दुआ मिलती थी. फिर वो जब देखते थे अच्छा इसमें ये शौक़ है इस चीज़ का, इसमें सूफ़ी म्यूज़िक का, सूफ़ी पोइट्री का इनमें शौक़ है, आर्ट का शौक़ है इनमें, तो फिर उनसे भी दुआएं मिलती थी. तो ये कुछ ऐसा सा मेरा बचपना गुजरा है. उसके बाद 10वीं के बाद पुणे शिफ्ट हो गया. तो पुणे में नई चीज़ें सीखी. तब तक तो मैं एकदम ओल्ड स्कूल टाइप का था, बस यही पोइट्री ये था जो अंदर था वही था. पर इस चीज़ को आप डेवलप कैसे करें, वो फिर पुणे में सीखने मिला. जब मैं कॉलेज गया, जब मैंने जॉब किया, ओके हाउ कुड आई मेक दिस थिंग एज अ प्रोफेशन, वो सब चीज़ें वहाँ पे सीखी. पढ़ाई में तो काबिल तरीन आप कह सकते हैं. पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था मैं. हाँ, आई वॉज ए पोजिशन होल्डर इन माई क्लास लाइक इन स्कूल टाइम्स. बट उसके बाद बात बिगड़ती गई. ओके, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई वॉज कॉट ऑन ए बंक वंस. आई वॉज इन माई 11th स्टैंडर्ड. तो उसके बाद घर पे थोड़ा सा ये हो गया, ये थोड़ा दरबदरी की ओर जा रहा है ये वो. तो उसके बाद मुझे भेजा गया पुणे. एंड पुणे में हाउ द कॉलेज वॉज चोजन, आई डोंट नो एनीथिंग. इट वॉज जस्ट सम कोई रिलेशन में कोई दोस्त था, दोस्त का दोस्त था, कज़न का दोस्त था, उसने बता दिया ये कॉलेज है, तो घुस गए वही कॉलेज में. आई विल से कॉलेज लाइफ वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट इट वॉज गुड. एंड इट वॉज वेरी स्ट्रगलिंग टू. लाइक आई हैड टू ट्रैवल अ लॉट एंड खुद खाना बनाओ, ये करो वो करो. इट वॉज वेरी हेक्टिक. आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट in 11th and 12th. Then I did my bachelor's in computer applications. Then I was into IT. तो IT छोड़ दिया. I came into music. But then घर वाले ऐसे थे कि because in my family, like my brother, my sister, they are very well educated. So my parents wanted me to masters कर लो at least. So while doing music, I completed my MBA also in marketing. और उसके बाद PhD का भी फॉर्म लाया गया था, लेकिन आई वाज लाइक अब बख्श दो मुझे, अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा. वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट योर ड्रीम्स टू कम ट्रू यू हैव टू वेक अप. तो इट्स लाइक दैट. सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, आप देख लो. ये लाइक सोसाइटी के हिसाब से मैं ये कहूँगा, सपने भी लिमिट्स में देखो. If we talk about society,
बट इफ़ यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग देन जितने देखने हैं देख लो, पर उनको सच करने में उतनी मेहनत भी है. सो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड फॉर दैट थिंग. तो मेहनत बहुत है उसमें. लाइक पीपल, द यंगस्टर्स ओवर हियर, दे कम टू मी कि कैसे करें म्यूज़िक में, कैसे जाना है, हमें भी बनना है. तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि मेहनत बहुत है. इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन. इट्स लाइक लाखों में से एक निकलता है ऐसा कोई जो आर्टिस्ट बनेगा. अदरवाइज एवरीवन चोजेस अ सिमिलर इजी पाथ. पढ़ाई करो, जॉब करो, दैट्स इट, ख़त्म. बट सपने देखना ठीक है, बट उनको सच करना आसान सी बात नहीं है. बहुत स्ट्रगल है उसमें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और मैं ये कहूँगा कि सोना नहीं है, नींद हराम करनी है अपनी. या यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड. यू हैव टू कीप दैट कंसिस्टेंसी इन डूइंग दिस थिंग. या दैट्स इट. इट्स लाइक क्या गलत क्या सही पार इसके कहीं, क्या गलत क्या सही पार इसके कहीं, जो हो सो हो वो जगह बोल दो. सो वो अगर वो जो हो सो हो कौन सी जगह है, वो इश्क की जगह है. वेर यू हैव वेर देर आर नो अपॉलॉजीज, वेर देर इज़ लाइक जहाँ पे आपको सीखना है फॉरगिव कैसे करना है. बट लाइक it's a very sophisticated thing, but if I say in a very simple words, you just need to be very kind to everything. You have to be kind to the creature and you have to be kind to its creation. Love is such a thing that it's same in every religion or every caste or every nation wherever you go. And जैसे सर मोहम्मद इकबाल का एक शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कम न थे करोबियाँ. So it means that दर्द दिल, मोहब्बत, इश्क, लव, इसी के वास्ते मैंने पैदा किया था इंसान को, वरना कम न थे करोबियाँ. करोबियाँ मीन्स द एंजल्स फॉर द वर्शिप. वरना मेरे पास इबादत के लिए एंजल्स कम नहीं थे, फरिश्ते कम नहीं थे. So yeah, that's what love is for me. And if you say if I have ever fallen in love, yeah, I think every day I fall. हो गई है, होती रहती है, दिल चीज़ ही ऐसी है. I think money, it's a very important thing in today's life. It's very important, very important. But above all of it, it's your skill, it's your talent, it's your skill which you like. जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए. पहले आपको उस चीज़ पे काम करना चाहिए. देन मनी इज़ जस्ट अ टोकन विच यू नीड just to showcase it. Suppose if I make any songs, the first thing that is I have to compose the music. I have to be honest with that. After that, when I have to record it, I have to show it to the people. तब पैसे की बात आ जाती है. So I think money is a very important thing. It's just like a fuel for the car. Yeah, you have the car, but you don't have the fuel. I think there's no use of the car. To be honest, I'm a very lazy kind of person. I just like to sit back at home and do something. And I think music is a very similar to that kind of work. Like you sit at home or anywhere, like you just get that vibe anywhere and you get those vibes, you get those tones in your mind, so you start composing music. And second thing, I didn't love to travel much, but since I have come into music, I have been traveling and I love it very much, and I'm very thankful that I have chosen music as my career. I need to travel places, but yeah, neende haram, so that's a part of it. And the basic reason why I chose music, I think I was good at it. As I said, I was into IT industry, I was into college, but I will full day, I have caught myself many times, I have been humming tunes, composing tunes, making music. Yeah, and then came the learning process. When I decided that I have to do music, then came the learning process. I learned like अपने skill को develop करते गया. So the basic reason is, and yeah, the other reason is the family background I come from, जहाँ पे सूफी शायरी को काफ़ी ये दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, और उस चीज़ का शौक़ था मुझे, and I wanted to put out that poetry in the sounds of music.
वो एक शौक़ था. आई थिंक दैट पैशन grew into me, और उस पैशन ने मुझे कहा कि नहीं, you have to do this thing. Yeah. I don't know this thing कि शायद सब बच्चे ऐसे सोचते हैं, but I had thought this in my childhood that I had kept 3 options for myself. First was the cricket, second was music, and third one was बस पढ़ाई करो और जॉब करो. बट पढ़ाई किस में करनी है वो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बिकॉज आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू क्रिकेट एंड म्यूज़िक. और उसके बाद व्हेन आई वेंट टू पुणे में स्केड्यूल इतना हेक्टिक हो गया था कि आई हैड टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग एट 6, and without having anything, without breakfast, without anything, I had to catch the bus at 7:15. I will reach college. Every day I used to reach 10 minutes late. It was 8:10, and the HOD knew now कि इसकी बस की टाइमिंग यही है, छोड़ देते थे. एंड उसके बाद कॉलेज ख़त्म होता था 3 बजे तक. उसके बाद ट्यूशन्स होते थे. उसके बाद उसके बाद एक और ट्यूशन हुआ करती थी फ़िज़िक्स की. उसके बाद मैंने गिटार क्लास ली हुई थी. एंड आई विल रीच होम बाय 9 or 10. And 9-10, like I will have my dinner, I will sleep, and next is same ही. So it was like after every 24 hours I used to eat. Okay, in our college there was cricket. They used like वहाँ पे practice हुआ करती थी. But for cricket, but for sport, you need to be physically fit. You need to eat good. And what will you play if you are eating after every 24 hours? Okay, so cricket छूट गया. उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान देने लगा मैं, और साथ साथ में म्यूज़िक. तो पढ़ाई थोड़ा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई. घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी. मुझे जॉब करना पड़ा बिकॉज नो वन वाज देयर टू स्पॉन्सर माय स्टडीज़. इट्स वेरी ऑनेस्ट. एंड देन आई चोज टू डू द जॉब इन IT. It was just like 10-12,000 salary I was earning a month, but it was enough to survive and enough to like खुद की ज़िंदगी चलाने के लिए enough था. And then उन दिनों ख्याल आया कि नहीं, अब तो कुछ बड़ा करना है, because my family needed support, I needed support for my life, I needed to make music, और मैं अब लेट नहीं करना चाहता था इस चीज़ को. So I started doing shows करना स्टार्ट किया मैंने, और साथ साथ जॉब. तो फिर एक टाइम आ गया जब मैंने जॉब छोड़ना फुल टाइम. आई केम इनटू म्यूज़िक, आई स्टार्टेड डूइंग शोज़ फुल टाइम. हाँ, तो ऐसी कुछ जर्नी रही है. या तो दीज 3 थिंग्स वेयर देयर इन माई माइंड: क्रिकेट, म्यूज़िक एंड स्टडीज़. और अल्हम्दुलिल्लाह द सेकंड वन उसमें पास हो गया मैं. ओके, सी माई जर्नी has been the biggest teacher for me to be. खुद अपनी लाइफ ऐसी इतनी स्ट्रगलिंग रही है कि काफ़ी कुछ सीखने मिला. और उसके बाद जो भी मैंने आज तक अपने दादाजी से सुनी है बातें, जो उनकी सोहबत में मैं रहा हूँ या अपने फादर के सोहबत में रहा हूँ, जो उनकी नसीहतें रही हैं आज तक, वो उन्होंने काफ़ी किरदार निभाया इस मेरे जर्नी में. आई थिंक माई ग्रैंडफादर, माई फादर, माई फैमिली ऑब्वियसली, या एंड माई जर्नी एंड माई कल्चर. कि जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान नहीं. एक परिंदा हूँ, उड़ना जानता हूँ, ज़िंदगी की कश्मकश में गिरफ्तार हूँ, कई तारों में उलझा हूँ, टूटा हूँ, बिखरा हूँ, पर हाँ, हारा नहीं हूँ. इस जदोजहद में बहुत कुछ सीखा हूँ. खुददार हूँ पर खुदगर्ज नहीं, गैरतमंद हूँ, बेगैरत नहीं. जिन तारों ने किया है कैद मुझको, अब उनसे आशियाना बनाना जानता हूँ. क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान नहीं. Yeah, you have to be very passionate. That's the only thing. Like people will tell you कि शायद आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, शायद आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मत करो ये, या शायद इसमें बहुत स्ट्रगल है, मत करो ये. But you have to do it for the sake of your passion. तो उस गैरत को ज़िंदा रखो अपने अंदर. Yeah, that's the faith. जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान नहीं. अगर आप में गैरत नहीं है तो आपको ईमान नहीं है किसी भी चीज़ पे. Oh, man on the mission, huh? I see. It is actually because I told you, using your form of art for something, I think that's a big thing. So my first motive was to
make Kashmiris listen to Kashmiri. And alhamdulillah, like उसमें कामयाबी मिल गई. So yeah, there are ऐसी कहीं सारे missions और हैं. It's not like I'm not only limited to this Kashmiri language. I love Urdu, I love Persian, and Persian once upon a time has been एक यहाँ की एक language रही है कश्मीरी की भी. Like my grandfather, he speaks Persian too. So yeah, that is also the motive, like all these putting all these languages, because all these languages are correlated to each other. Okay, और ऐसे कुछ किस्से हैं जो उर्दू में आते हैं, वो जब तक आपने पर्शियन में नहीं पढ़ा होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे. So you have to learn, you have to understand all these languages. So this is the mission, like for me, to promote all these languages. See, the negativity is there, it's everywhere, and as I said, you have to find good in everything. You have to find good in everything. Even if you are dead, you have to see something good in it. है ना कि एक शाहरुख खान का इंटरव्यू सुना था मैंने, उनमें वो कृष्ण जी और कुछ स्टोरी सुनाए थे कि एक कुत्ता मर गया था. तो ही टोल्ड हिम कि यार देखो कितना अजीब लग रहा है ये कुत्ता. But the other guy told him कि but look at the teeth. Look at his इनके दांत देखो, how they are shining. So it's like you have to find positivity in everything. And if I tell you in Kashmir, obviously, yeah, the situation, all these things, they obviously put the negative effect on everything. But I will tell you, the situation here, all these hartals and all, they have made us, इस चीज़ ने हमें काफ़ी social बना दिया. Like we respect each other. I think you won't see this thing in any other state or any other culture, how much we respect each other. So this thing has made us like काफ़ी social बना दिया हमें. तो वो social होना, उससे क्या हो गया कि हमें एक दूसरे की तरबियत मिलती है, हम एक दूसरे का एक जो कंपनी मिलती है, हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है एक दूसरे से. एंड दैट थिंग उसकी वजह से मजलिसें यहाँ पे खड़ी हो गई. तो मजलिसों में जहाँ पे काफ़ी सारे आपको बुज़ुर्गों के साथ बैठने मिलता है, you learn. So this is how you find positivity in these tough times. See, the thing is कि I'm not any trained artist, you can say, but then yeah, there's this advice like I would like to give to every new artist who's upcoming artist, that you have to learn at every step. I had to pick up guitar. At the age of 18, I picked up guitar. I learned it. I had to learn it so that I could support my singing, so that it could help me compose the music. तो आपको सीखना है हर कदम पे. It's not like I call myself an untrained, मैं trained artist नहीं हूँ. I think this statement is wrong. We learn at every step, every point. I think being an artist, you have to be a hustler, not a struggler. जैसे बुल्ले शाह का कहना है कि इश्क देख के किया तो क्या किया, और जहर देख के पिया तो क्या पिया. सो इट्स लाइक आपको डुबकी मारनी है तो देख के मारोगे तो क्या फ़ायदा है. इट्स लाइक यू हैव टू डाई इन इट. सो देख के कुछ फ़ायदा नहीं है. सो यू हैव टू बी हसलर. या देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ लुकिंग बैक. बस आगे बढ़ते जाओ. एज एन आर्टिस्ट देयर इज़ स्ट्रगल एट एवरी स्टेप. बस चलते बनो, चले चलो कड़ी है राह दोस्तों, थकन कनाव भी न लो, बड़े चलो. Karan maha church husnas gat vanan yaras pato akkat. Karan maha church husnas gat vanan yaras pato akkat. Ye dil devan gauche pat beysizna rele bumburu. Ye dil devan gauche pat beysizna rele bumburu. Tamanna chani didaruk shumoyun var zale bumburu. Bajis yamat lajis vachne गजस जाने गले बुंबरू. कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ
वाइज कहाँ, मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज। पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।